آپ کی رفتار کے بارے میں قرآن پاک نے بیان کیا، سبحان الذی اسریٰ، یا رسول اللہ آپ کی گفتار کے بارے میں قرآن پاک نے بیان کیا، وما ینطق عن الہویٰ، یا رسول اللہ آپ کے اخلاق کے بارے میں قرآن پاک نے بیان کیا، انک لعلی خلق عظیم، یا رسول اللہ آپ کی آمد پربہار کے بارے میں قرآن نے بیان کیا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نقیب ہندوستان قاری میاں صاحب، رفعت مصطفیٰ، علامہ عقیل الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ابھی انہوں نے نقابت میں علماء کو توجہ کے فرمایا آپ رکو میں انہیں دیکھتا ہوں، لیکن اب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ نقابت بھی کر رہے ہیں، نعرے پہ نعرے لگا رہے ہیں، یہ دیوانوں کا مجمع ہے، یہ عاشقوں کا مجمع ہے، یہ خواجہ کے چاہنے والوں کا مجمع، یہ غوث کے دیوانوں کا مجمع، یہ صابر کلیری کے مستانوں کا مجمع، ہاں یہ نبی کے غلاموں کا مجمع۔ عقیل الرحمن دیکھنا چاہتا ہے، اے چلا والوں، اے ارد گرد سے آنے والوں، کیا تم جلسہ ہی سنتے ہو یا تمہیں نعرہ یاد بھی ہے، یا تم جلسہ ہی کراتے ہو یا نعرہ لگانا بھی جانتے ہو؟ میں عاشق کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجمع میں سے نبی کا دیوانہ کھڑا ہو کے نبی کے نام پہ کیا نعرہ ہی لگا سکتا ہے؟ ارے بابا بابا بابا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے تو اتنی محنت کر رہے ہیں، جگہ بھی رہے ہیں، بولا بھی رہے ہیں، بولا بھی رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ احمد رضا آپ کی نعت لکھنا چاہتا ہے، احمد رضا آپ کی توصیف بیان کرنا چاہتا ہے۔ قرآن میں آپ کی ہر عضو کے بارے میں، آپ کی پیشانی کے بارے میں، آپ کے سینے کے بارے میں، آپ کے سر کے بارے میں، آپ کے چلنے کے بارے میں، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کے بارے میں قرآن نے بیان کیا۔ آگے احمد رضا کہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے اندر حضرت آدم کا خلق بھی ہے، آپ کے اندر حضرت شیش کا عرفان بھی ہے، آپ کے اندر حضرت داؤد کی زبان بھی ہے، آپ کے اندر حضرت لوط کی حکمت بھی ہے، آپ کے اندر حضرت موسیٰ کا جلال بھی ہے، آپ کے اندر حضرت عیسیٰ کا کمال بھی ہے، آپ کے اندر حضرت یوسف کا حسن و جمال بھی ہے۔ امام احمد رضا پکار اٹھے، یا رسول اللہ کہوں تو کیا کہوں؟ تو امام بولے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیفہ گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس صاحب تلاہی کے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، بہت اچھے، ذرا دل لگا کے بول دو سبحان اللہ۔ پورا مجمع دائیں سے بائیں تک، آگے سے پیچھے تک نبی کے نام پہ بول دو، یا رسول اللہ۔ ارے ہاتھوں کو اٹھاؤ دیوانوں، تمہیں گرمی پیدا ہوگی، ثواب ملے گا۔ پورا مجمع بولو، یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تم نے نبی کے نام پہ اپنی زبان کھولی، تم نے نبی کے نام پہ ہاتھ اٹھایا، آؤ تمہارے لیے نبی کیا کھولیں گے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، مسلم شریف ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 59 ہے۔ ذرا دل لگا کے بولو سبحان اللہ۔ نبی کے نام پہ تم نے اپنی زبان کھولی، میرے نبی تمہارے لیے کیا کھولیں گے؟ عقیل الرحمن کہنا چاہتا ہے، مسلم شریف ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 59 ہے۔ ان انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آتی باب الجنہ یوم القیامہ فاستفتحوا فیقول الخازن من انت فاقول انا محمد فیقول بک امرت لافتح لاحد قبلک۔ نبی کے نام پہ بول دو سبحان اللہ۔
आमना के लाल ने इरशाद फरमाया, अब्दुल्ला के दुलारे ने इरशाद फरमाया, नबियों के सरदार ने इरशाद फरमाया। क्या इरशाद फरमाया? नबी इरशाद फरमाते हैं मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा। बाप बेटे से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, भाई भाई से भागेगा, दोस्त दोस्त से भागेगा, रिश्तेदार रिश्तेदार से भागेगा। एक नेकी के लिए आदमी परेशान होगा। बेटा बाप के पास जाएगा, बाप बेटे को देने को तैयार नहीं, बेटी माँ के पास जाएगी, माँ बेटी को देने को तैयार नहीं, भाई भाई के पास जाएगा, भाई भाई को एक नेकी देने को तैयार नहीं। आज मैदान महशर कायम है, नफ्सी नफ्सी का आलम है। हाँ हाँ मुझे पहले ले दिया जाए, जलसे में आने वालों तवज्जो करना। हाँ हाँ वही मैदान महशर जहाँ सारे के सारे हजरत आदम की बारगाह में जाएंगे तो आदम की बारगाह से जवाब मिलेगा इस हबू एला खैरी। हजरत नूह की बारगाह में जाएंगे, जवाब मिलेगा इस हबू एला खैरी। हजरत शीश की बारगाह में जाएंगे, जवाब मिलेगा इस हबू एला खैरी। हर नबी की बारगाह में जवाब मिलेगा इस हबू एला खैरी। और मेरे नबी की जबान पर वहां भी होगा अनाला 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 अनाला। एक बोलेगा मैं तुम्हारे लिए हूँ, मैं तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामाते मुस्तफा, इस्लाहे मुआशिरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कहा आपने जबान खोली है, मेरे नबी आपके लिए क्या खोलेंगे? तवज्जो है, तवज्जो है। अरे पूरा मजमा तवज्जो इधर करो और तवज्जो नहीं बल्कि देखो। अगर नहीं तो सुनो मेरे नबी का फरमान। सहू सदूर में भी है, मिशकात शरीफ में भी है। قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من زار عالما فكأنما زارني ومن صافح عالما فكأنما صافحني ومن جلس عالما فكأنما جلسني ومن جلسني أجلسه الله يوم القيامة في الجنة। محبت से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तर्जमा सुन लो, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि जिसने आलिम की जियारत की उसने गोया मेरी जियारत की। नबी ने इरशाद फरमाया जिसने आलिम से मुसाफा किया उसने गोया मुझसे मुसाफा किया। नबी ने इरशाद फरमाया जो आलिम की मजलिस में बैठा वो गोया मेरी मजलिस में बैठा। और नबी फरमाते हैं जो मेरी मजलिस में बैठा रोज़े क़यामत अल्लाह ताला उन सबको जन्नत में बिठाएगा। वाह 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 वाह। अल्लाह अकबर। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, मोहब्बत से जवाब दो। जवाब दे जवाब दे जवाब दे या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 माशाअल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमान ताजा हो जाएगा। मैं किस्सा नहीं सुनाता, मैं कहानी नहीं सुनाता। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी कहो, 23 साल से एक ही जगह पर रहता हूँ, लेकिन हिंदुस्तान के गोशे गोशे में मैं शुक्रिया के तौर पर कहता हूँ मैंने बाई ट्रेन भी प्रोग्राम किया, बाई फ्लाइट भी प्रोग्राम किया। आज मिलतला वालों नबी का फरमान सुनो, ईमान ताजा करो। मेरे नबी ने फरमाया आलिम की जियारत गोया मेरी जियारत, आलिम से मुसाफा गोया मुझसे मुसाफा, आलिम की मजलिस में बैठना गोया मेरी मजलिस में बैठना और दीवानों मचल जाना। नबी फरमाते हैं जो दुनिया में मेरी मजलिस में बैठा हश्र में मेरे साथ वो जन्नत में बिठाया जाए। अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी का फरमान है, मोमिनों का ईमान है। और कारी मियां साहब अकीलुर रहमान का लफ्जों में बयान है। जमीन फट सकती है, आसमान के तारे गिर सकते हैं, दरिया का पानी खुश्क हो सकता है, कायनात का निजाम तो बदल सकता है, लेकिन मेरे नबी का फरमान नहीं बदल सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह।
मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह। मैंने जो हदीस मुस्लिम शरीफ की पढ़ी है उसका आप तर्जमा सुन लीजिए, मैं आगे अपनी गुफ्तगू बढ़ाता हूँ। मेरे नबी क्या बोलेंगे? मेरे नबी फरमाते हैं मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, मैं जन्नत के दरवाजे पर आऊंगा और जन्नत का दरवाजा खोलूंगा। दारोगे जन्नत पूछेगा आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आपकी तारीफ क्या है? आका इरशाद फरमाते हैं, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हज़रात तवज्जो फरमाएं। मेरे नबी फरमाते हैं जब दारोगे जन्नत पूछेगा, जो जन्नत के दरवाजे पर रहेगा उसे दारोगे जन्नत कहते हैं, रिज़वाने जन्नत कहते हैं। नबी इरशाद फरमाते हैं जब जन्नत का दरवाजा खोलूंगा, दारोगे जन्नत पूछेगा आप कौन हैं, आपका नाम क्या है? नबी इरशाद फरमाते हैं मैं कहूंगा मोहम्मद रसूलुल्लाह हो, शम्सु तुहा बदलु तुझा हो। तो आगे सुन लेना, जब फरिश्ता इतना सुनेगा, दारोगे जन्नत इतना सुनेगा, अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने फरमाया है किसी को जन्नत का दरवाजा मत खोलने देना, लेकिन या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया है कि अगर मेरा महबूब खोले तो उन्हें मत रोकना। या रसूल अल्लाह, जन्नत आपकी है, मालिक जन्नत आप है, जा सकते हैं और जिसे चाहे अपने साथ ले जा सकते हैं। बरेली के इमाम पुकार उठे तो इसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। जरा मोहब्बत से बोल दो और दिल लगा के बोलो, जरा नबी को पुकारो और बोलो या रसूल अल्लाह। एक जगह मैंने ऐसे ही कहा बोलो या रसूल अल्लाह, बोलो या रसूल अल्लाह। एक साहब खड़े होकर बोले मौलाना, मैंने कहा बोलो ना, बोले मौलाना। मैंने कहा फिर कहता हूँ बोलो ना, बोले मौलाना बार बार कहते हो कहो या रसूल अल्लाह, कहो या रसूल अल्लाह। आप समझ गए पेट में दर्द क्यों पैदा हो गया? वो कौन सी जमात का था, वो कौन से गिरोह का था, वो कौन से फिरके का था? अकीलुर रहमान डंके की चोट पर बोलता है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मौलाना या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, या रसूल अल्लाह कहना बिदअत है, तवज्जो करना। मैंने कहा सो नाम अकीलुर रहमान है, मकानो दुकान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में एलानो चलन है। मैंने कहा ना था तुमने कितनी किताबें हदीस की पढ़ी है? मैंने कहा सुन, तुमने बुखारी शरीफ पढ़ी है, तुमने मुस्लिम शरीफ पढ़ी है, तुमने मिशकात शरीफ पढ़ी है, तुमने निसाई शरीफ पढ़ी है, तुमने तिरमिज़ी शरीफ पढ़ी है। मैंने कहा नादान, हदीस की किताबें उठाकर देख ले तो तुम्हें मिलेगा क्या? सिद्दीक़ अकबर ने कहा या रसूल अल्लाह, उमर फारूक ने कहा या रसूल अल्लाह, उस्मान गनी ने कहा या रसूल अल्लाह, मौला अली ने कहा या रसूल अल्लाह। जलसे में आने वाले तवज्जो करना। मैंने कहा आगे सुन ले, करबला के हुसैन ने कहा या रसूल अल्लाह, बगदाद के गौसे आजम ने कहा या रसूल अल्लाह, अजमेर के ख्वाजा ने कहा या रसूल अल्लाह, कलियल के साबिर पिया ने कहा या रसूल अल्लाह, और देवा के वारिस पाक ने कहा या रसूल अल्लाह, और सुन लियो बरेली के इमाम मोहम्मद रसूल ने कहा या रसूल अल्लाह। हम सुन्नी भी कहेंगे या रसूल अल्लाह, सुन्नी का बच्चा बच्चा कहेगा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है, उसका बेड़ा बहुत अच्छे पार है। हाँ मुझे मालूम है, शर्म लगती है, मैं यूपी में रहता हूँ। रात के 1 बजे एक साहब आ गए, इमाम साहब कमरे में लेटे हुजरे में, और रात के 1 बजे इमाम साहब आ गए और दरवाजे में दस्तक दी। तो रात को 1 बजे आँख खुली इमाम साहब की। इमाम साहब सोचने लगे रात के 1 बजे कौन आ गया? बोले कौन? तवज्जो कीजिएगा, बोले कौन? तो आने वाला बोला मौलाना साहब खोलिए, पड़ोसी हूँ। कहा कौन? बोले आप ही के पड़ोस में रहता हूँ। क्या नाम है? बोले जाकिर। क्या नाम है? अरे बोलो तो बोल के दिखाओ, क्या नाम बताया उसने? पूरा महिमा बोला, क्या नाम बोला? जाकिर। अब मौलाना सोचने लगे रात के 1 बजे ये वो जाकिर है जो जोहर में नहीं आया था, यही वो जाकिर है जो असर में नहीं आया था, यही वो जाकिर है जो मगरिब में नहीं आया था, यही वो जाकिर है जो ईशा में नहीं आया था, यही वो जाकिर है जो फजर में नहीं आया था। बोले जाकिर तू जोहर में नहीं था, ए जाकिर तू असर में नहीं था, ए जाकिर तू मगरिब में नहीं था, ए जाकिर तू ईशा में नहीं था। तो रात के
1 बजे तहज्जुद की नमाज पढ़ने आ गया। बोले मौलाना साहब दरवाजा तो खोलो। बोले क्या हुआ? बोले नमाज पढ़ने थोड़ी ना आया हूँ, आपको बुलाने के लिए आया। बोले क्यों? बोले घर में लड़का पैदा हुआ है, उसके कान में अजान देना है। हज़रात तवज्जो कीजिए, इस्लाह मुआशरा है। हमारा मुआशरा कितना बिगड़ गया है। जलसे ये बाईसी इलाके में इतने होते हैं। आजकल इंटरनेट का जमाना है, दुनिया तरक्की कर गई है। अभी अभी उनसे बशीरी का प्रोग्राम हो रहा था, कारी नियाज़ साहब लाइव चला रहे थे। मैंने देखा पढ़ने वालों को, अरे देखो जलसा कहीं भी कोई सुन रहा है, हाँ मुझे क्या लेने दो। मौलाना बोले अच्छा लड़का पैदा हुआ तो अजान देने के लिए मुझे बुलाया, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। अरे फजर की अजान में अगर लेट हो गया तो मुक्तदी कहेंगे इमाम साहब से सोते रहते हो, तनख्वाह किस बात के लेते हो, तुम तो सोते रहते हो, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। क्या तुम्हें अजान याद नहीं है? क्या तुम अजान देना नहीं जानते हो? सुन्नियों तवज्जो करना। वो बोलता है मौलाना अजान तो याद है लेकिन देने में शर्म लगती है। अल्लाह अकबर कबीरा। अजान देने में शर्म लग रही है, अजान तो याद है लेकिन देने में शर्म लगती। मैंने वहीं पे अपने कहा तसव्वुर से कि मौलाना इससे कहो कि तुम्हें अजान देने में शर्म लगती है, नबी की नाम पढ़ने में शर्म लगती है, तुम्हें तिलावत करने में शर्म लगती है, गाना गाने में शर्म नहीं लगती, यूट्यूब चलाने में शर्म नहीं लगती, फेसबुक में रहने पे शर्म नहीं लगती, व्हाट्सएप पे चैट करने में शर्म नहीं लगती, और अगर डीजे पर जाए तो कमर हिलाने में शर्म नहीं लगती। अरे नादान, जिन कामों से बचना चाहिए था उसमें शर्म नहीं लगती, और जिन कामों से मर्तबा बड़ा होता है तुझे शर्म लगती है। अगर तू दुनिया में अजान देने वाला बन जाए तो जन्नत में बिलाल हबशी के साथ चला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीन मिल्क तोला, अल्लामा अकीलुर रहमान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। मुझे वक्त का ख्याल है, इशारे इशारों में कारी मियां साहब ने बता दिया, और अरबी का मकूला है अल-आक़िलु तफ़सील इशारा। मैंने फजीलत की डिग्री मंजर इस्लाम से हासिल करने के बाद दारुल इफ्ता में तहक़ीक़ी फ़िक़ह में बैठा, और उसके बाद में पहुंचा जिला शाहजहांपुर। मुझे क्या लेने दिया जाए, इस्लाह मुआशरा क्या किया जाए। एक जवान बेटा होता है, बाप से कैसे बात करनी चाहिए उसे तमीज तक नहीं है। एक बेटी को अपने माँ से किस तरीके से बात करनी चाहिए, मुआशरे का हाल उठाकर देखो। भाई ये छोटा एक बड़ा है, बड़े भाई के साथ छोटे भाई को किस तरह सलूक करना चाहिए, ये मुआशरा कहाँ चला गया। ए दीवाना, तुम तो नबी का कलमा पढ़ने वाले हो, तुम तो नबी के सच्चे गुलाम हो, तुम तो नबी के चाहने वाले हो, तुम तो नबी के मानने वाले हो। क्या मेरे नबी का दीन यही सिखाता है? क्या मेरे नबी की शरीयत यही बताती है? क्या मेरे नबी का पैगाम यही है? क्या मेरे नबी का किरदार यही है? क्या मेरे नबी की बातें यही है? क्या मेरे नबी का कौल यही है? अरे नहीं नहीं, नबी का कौल और किरदार तो ये है, सीरत तो ये है कि तुम इस तरीके से अपनी जिंदगी बना लो कि अकेले नहीं लाखों के मजमे में खड़े हो जाओ तो देखने वाला देख कर बता दे नबी का गुलाम खड़ा है, मुस्तफा का दीवाना खड़ा है। लाखों के मजमे में भी खड़े हो जाओ तो देखने वाला देख कर कह दे ये कोई गौसो ख्वाजा का दीवाना खड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। मालूम है हाल क्या है जी, मैं अक्सर मैं जो बयान करता हूँ मुझे मालूम था वक्त आ रहा है, इसलिए इस्लाह मुआशरा है, कुछ तो पैगाम देना है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं हकीकी बात बता रहा हूँ। मिंबर नूर एक जगह सफर करते बजा रहा था, मालूम है क्या हुआ? पास में एक साहब बैठे हुए थे, मैंने कहा क्या नाम है? बोले शाकिर, यही नाम बोला उसका जी, शाकिर। तो मैंने कहा माशाअल्लाह मुसलमान। बोले मौलाना कैसी बात करते हो? मैं मुसलमान, मेरा बाप मुसलमान, मेरा दादा मुसलमान, मेरा परदादा मुसलमान, पूरा का पूरा खानदान मुसलमान। तो मैंने कहा नाराज मत हो, तुम्हारे चेहरे से नहीं पता चला कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारे किरदार से नहीं पता चला कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारे लिबास से नहीं पता चला कि तुम मुसलमान हो। इसलिए मैंने नाम पूछा और तुमने नाम बताया, तब पता चला बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब वो चलता है तो पता ही नहीं चलता कि ये कौन चल रहा है। अरे आओ
क्या वक्त आ गया अब भी अपनी पहचान मजबूत कर ले, अब भी अपना ईमान मजबूत कर ले, अब भी अपना मकीदा मजबूत कर ले, इसलिए कि अपनी पहचान ऐसी बनाओ कि हम तन्हा रहे, कभी का गुलाम पता चले और लाखों में चले जाए कभी नबी का गुलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात सच है, बहुत अच्छे, बिल्कुल बात हक है। जलसे बहुत सुनते और मुझे कह लेने दो, बात कड़वी जरूर लगे, जलसा होता बहुत ज्यादा है लेकिन जलसे में मजे बहुत ज्यादा लिए जाते हैं। इस दुकान की क्या जरूरत है, इस मेले की क्या जरूरत है, ये जो मजमा लगाए लोग घूम रहे इसकी क्या जरूरत है, इसी का नाम जलसा है। अरे जलसा का मतलब ये है कि आके बैठ जाना, जलसे का मतलब ये है कि जहाँ जिक्र हो वहाँ पे सुनना। क्या बात बताई जा रही है, तुम जब बैठोगे नहीं तो कैसे उलमा तुम्हें बताएंगे कि वजू में कितने फराइज हैं। जब तुम बैठोगे नहीं उलमा कैसे बताएंगे कि मसाइल गुस्ल क्या है। जब तुम बैठोगे नहीं तो उलमा कैसे बताएंगे किस हाल में रोजा तोड़ा जाएगा, किस हाल में रोजा रखा जाएगा, किस हाल में कफारा दिया जाएगा, किस हाल में नहीं दिया जाएगा। अकीलुर रहमान नफ्स पे हाथ रख रहा है। तुम्हारा हाल तो ये है कि तुम बुराई की तरफ चले जा रहे हो, तुम्हारा हाल ये है तुमने अपनी पहचान मिटा दी। तो हालात है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, कसम खुदा की तुम्हारा ईमान